एक लड़का जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है वो देख रहा है अपनी चारों तरफ लड़कियां है एंड वो लड़कियां सभी के साथ रिलेशनशिप में है, कोई भी सिंगल नहीं है। मोस्ट ऑफ सारी लड़कियां रिलेशनशिप में है, अगर नहीं है तो रिलेशनशिप में जाना चाहती है, उसके लिए फुल मेहनत कर रही है। तो ये सिचुएशन है एंड इतना ही काफी नहीं है, वो इंटीमेट हो रही है, न्यूड पिक सेंड कर रही है एंड वो क्या कर रहा है, वो ओवरवर्कड है, स्ट्रेस है, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है एंड ये सारी चीजें क्यों कर रहा है वो, ताकि वो अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सके एंड एक ऐसा व्यक्ति उसकी लाइफ में आ सके जो उसके वैल्यू करे, जो उसके लिए प्राउड फील करे। इसके लिए वो सारी मेहनत कर रहा होता है। लेकिन वो देख रहा है कि लड़कियां तो सारी तरफ मजे ही मार रही है, तो क्या मैं जो भी कर रहा हूं अपनी लाइफ में सही भी कर रहा हूं? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और वहां पे सब मजे कर रहे हैं, क्या यही सच है? क्या क्या सच में मुझे शादी करनी भी चाहिए किसी से? एंड ये कहानी सिर्फ इस लड़के की नहीं है, ये बहुत सारे लड़कों की कहानी है। लेकिन आज इस बंदे ने अपनी कहानी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, जो रेडिट पे से मैंने ली है। सो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फॉर रियल आई वॉज इन ट्यूशन प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड ब्रो what every girl I mean, every girl was in relationship. And that's not enough. Bro, they are getting intimate, sharing nudes and all. I am working hard, will decent college and study day and night. Will work hard so that I can get good placement and will make my parents proud. And obviously doing for my future. I know not all girls are same, but 99% are in relationship or been into relationship. Every girl I see or meet, either they are in a relationship or eager to go into a relationship. And look what, I am working hard for the girl who had past relations, got intimated with 3 or 4 guys, and here I am working hard, getting rejected by colleges and all, so that she gets comfortable life. Bro, obviously no. I would prefer not to marry and die single. I know there are also boys like that, but can't a girl figure out who is a real lover and who is a fuckboy? Literally, how can a girl send a nude to a boy which she met recently and know nothing about him? And sending nudes just to prove their love? I mean, what the fuck? Let me tell a story. I had one female friend. We were friends for 1.5 years. So I knew everything about her. And the moment she went to college, within 2 months, she went into a relationship with an unemployed boy, which she met on Omegle. Can you believe? On Omegle. The boy proposed to girl. She fell in love with 5 or 6 years older boy, and within 1 week into a relationship, the guy asked for nudes. And guess what? She literally gave to that boy, which she didn't even know properly. And guess what? That guy broke with her within a month. A relationship which was initiated by boy and got also broke by boy. And literally, the girl was saying she has no problem. She don't have issue. I know he would not do anything with that nude photos and videos. And this is one case which I have been witness. And literally, when I was in school, girls and boys from classes 6th, 7th are entering into relationships, having sex and all, and then breaking up with each other. I would better prefer a life where I would invest all my hard earning money into my parents and my dreams, buy whatever I want, will travel wherever I want, and would live a happy life. So ये कहानी देख रहे हो कितनी ज्यादा सैड है। एंड ऑब्वियसली यार किसी को भी दर्द होगा, कोई भी बंदा फील करेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे आसपास, सारे लोग इसी मोह माया में पड़े हुए हैं एंड मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं अपना एक फ्यूचर अच्छे से क्रिएट कर सकूं। एंड वो सारे लोग अभी अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, अभी मजे कर रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। एंड ये मेहनत जो भी मैं कर रहा हूं वो क्या रियली में वर्थ इट भी होगी? मुझे कोई ऐसी लड़की मिल भी पाएगी जो एक अच्छा पास्ट रखती हो, जो इतनी ज्यादा रिलेशनशिप्स में ला रही हो, जो रियली में अपने आप पे वर्क कर रही होगी? ऐसी लड़की मुझे मिल भी पाएगी? ये कहानी बहुत सारे लड़कों के मन में होती है एंड लिटरली होगी ही, क्योंकि हमने देखा है, हमारे पास बहुत ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स है। हमारे फ्रेंड के थ्रू देखा होगा हमने, या तो फिर हम ऐसी लड़की से ही मिले होंगे जिसने ऐसा कुछ किया होगा।
एंड जिसके बहुत सारे रिलेशंस रह चुके होंगे एंड वो प्राउड फील कर रही होगी। मैंने तो देखी ऐसी जो प्राउड फील करती है, मेरे इतने ज्यादा बॉडी काउंट है, पता नहीं क्या चीज का प्राउड है। अगर अच्छे नंबर आए होते, कुछ अचीवमेंट हासिल की होती तो समझ आता है कि हाँ बंदी प्राउड फील कर रही है, लेकिन बॉडी काउंट पे क्यों प्राउड फील करना, मुझे नहीं समझ आया। लेकिन ठीक है, वो प्राउड फील कर रही थी। तो सबसे मेन चीज कल्चर शिफ्ट हो गया है। डोपामीन के पीछे लोग इतने ज्यादा भूखे हो गए हैं कि उन्हें नहीं समझ आ रहा। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट प्लेजर, ये सारी चकाचौंध देख के वो समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। ये लड़का चला गया मेरी लाइफ से, अरे कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा लड़का भी आ जाएगा। लड़कों की कहां कमी है मेरी लाइफ में, लड़के तो यूं खड़े हैं, इतने ज्यादा हपसी लड़के हैं, ये नहीं तो कोई और आ जाएगा। तो भले मैं लड़की ऊपर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक बंदे के पीछे थोड़ी रहूंगी मैं। अगर वो जाना चाहता है तो चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दूसरा आएगा। एंड लड़कों का भी यही सीन रहता है आजकल। पता नहीं कौन सा फक बॉय का कल्चर चल रहा है कि मैं प्ले बॉय बनूंगा, मेरे इतनी ज्यादा लड़की, इतने ज्यादा रिलेशनशिप होने ही चाहिए, इतनी ज्यादा लड़कियों के साथ मैं इंटीमेट होऊंगा, तभी मैं अपने आप पे प्राउड फील करूंगा, तभी मैं लोगों को सोसाइटी में बता पाऊंगा कि देखो यार मेरी इतनी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रही है, मैं इतनी लड़कियों के साथ सो चुका हूं, एंड वाओ व्हाट एन अचीवमेंट आई हैव मेड। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एंड लोगों को अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, चौथी। तुमने ये ओमेगल वाली स्टोरी पे फोकस किया कि लड़की कैसे एक रिलेशनशिप में आई ओमेगल वाले बंदे के साथ। चलो वो जॉब नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच होता है, नहीं कर रहा वो जॉब, नहीं पसंद नहीं करनी। लेकिन जैसे ही वो रिलेशनशिप में आया उसके साथ, एक हफ्ते में ही उसने न्यूड्स के लिए मांग लिया। ठीक है, मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा नाक ही नहीं है उस बंदे में, नकटा इंसान है। एंड उसने न्यूड्स मांग लिया उस बंदी के पास से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दे रही है तो अच्छा है, ना दे रही हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी देख लूंगा, 2-3 और हफ्ते में ओयो तो ले ही जाऊंगा मैं इसे। तो एक हफ्ते में न्यूड्स मांग लेता है, मांग लिया, गलती की ऑब्वियसली, अच्छी बात नहीं है, लेकिन लड़की ने दे भी दिए। सबसे बड़ी आयरनी कि लड़की ने दे भी दिए, लड़के ने कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं बोल रहा हूं कि लड़के ने भी खराब काम किया एंड लड़की ने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया, मोरली कोई ज्यादा अचीवमेंट हासिल नहीं कर ली। ठीक है, न्यूड्स दे दिया, रिलेशनशिप टूट गई। मेन दिक्कत ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिलेशनशिप जब 1-2 महीने बाद टूट गई तो भी लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इट डिडंट वर्क आउट, डजंट मैटर। सो यही दिक्कत है, फर्क पड़ना चाहिए। जब तुम किसी पर्सन में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे इमोशनली किसी के साथ अटैच हो रहे हो, तो तुम्हें अगर वो बंदा तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा तो फर्क तो पड़ना चाहिए ना। इमोशनली इतने ज्यादा नम हो गए क्या हम लोग कि हमें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? ये सारी चीजें सोचना ही बंद कर दी है क्या हमने? डजंट मैटर यार, चला जाए तो चला जाने दो, दूसरा आएगा। सो ये भी माइंड शिफ्ट प्रॉब्लम एंड ये सारा कल्चर, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोगों ने गलती की है। बहुत सारे लोगों ने हमें यह बताया है कि लड़के को हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, सक्सेस के पीछे भागना है, पैसे कमाना है, तभी वो सक्सेसफुल कहला पाएगा सोसाइटी में, तभी उसकी रेप्यूटेशन होगी। लड़की को क्या बताया जाता है? लड़की को यह बताया जाता है कि तुम्हारी ऑलरेडी वैल्यू है, तुम्हें उसको यूज करना सीखना है। मेन प्रॉब्लम यह है, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है, लड़कों को सिर्फ पैसे कमाने पे ही फोकस करवा दिया जाता है। जब हमें कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाती है ना, तब हम उस चीज की, उस व्यक्ति की वैल्यू कभी भी नहीं कर पाते एंड ना ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे यार? इतनी ज्यादा इजीली मेरी लाइफ में आ गया, अभी एक हफ्ते में एक बार ओमेगल पे बात की, थोड़े टाइम बात की और ज्यादा एंड रिलेशनशिप के लिए पूछ लिया, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए मान गई, रिलेशनशिप में आई, एक हफ्ते बाद न्यूड के लिए मांग दिया, ठीक है, वो भी दे दिए, अब 2 हफ्ते बाद ओयो के लिए पूछ लूंगा, वो भी मान जाएगी। इतना ज्यादा इजीली हमें सारी चीजें मिल रही है, तो फिर क्या ही दिक्कत है? क्योंकि दोनों एक दूसरे की वैल्यू कर ही नहीं रहे होते एंड बोर भी तो आजकल इंसान बहुत जल्दी हो जाता है। अगर तुम्हें पता होगा कि रील्स भी हम पूरी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उस चीज को इतना देख सके, ठीक है, जल्दी 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 सारी चीजें
हमें इंस्टेंटली चाहिए ना। एंड एक सच है जो अभी बहुत सारे बंदे रियलाइज कर पा रहे हैं कि वो जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने काम में, अपने पर्पस में, पैसे कमा रहे हैं, वो किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कमा रहे हैं। वो अपना एक अच्छा फ्यूचर हो इसीलिए कमा रहे हैं, एंड ताकि किसी लड़की के सामने भीख ना मांगनी पड़े कि प्लीज मेरी लाइफ में आ जा, ऐसा किसी लड़की को बोलना ना पड़े। इसीलिए तुम्हें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे करियर पे ध्यान देना है। एंड कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती, या तो फिर तुम्हें कंपेटेबिलिटी नहीं फाइंड कर पा रहे किसी लड़की में, तो ठीक है, मत आओ रिलेशनशिप में। शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लिखा नहीं है कि तुम सिंगल नहीं रह सकते पूरी जिंदगी भर। तुम सिंगल रह सकते हो, इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स नॉर्मल। एंड बहुत सारे लोग ये चूज भी कर रहे हैं, एंड इसलिए चूज नहीं कर रहे क्योंकि वो लड़कियों को हेट कर रहे हैं या वो नफरत करते हैं लड़कियों से, पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स उनके ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा गलती की है एंड उसकी लाइफ वर्स हो गई है। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है कि वो बंदा इतना स्ट्रेस में है, फाइनेंशियली, इमोशनली, लीगली, सारी चीजों में इतना फंसा पड़ा है कि नहीं कर पा रहे यार वो रिलेशनशिप, नहीं किसी से कमिट कर पा रहे, नहीं है ट्रस्ट, नहीं है भरोसा किसी लड़की पे या लड़की को लड़के पे। ऐसा एनवायरनमेंट हम सब ने क्रिएट कर दिया आज के सिचुएशन में, आज की डेट में, कि लड़का ना ही लड़की पे भरोसा कर पा रहा है, लड़की ना ही लड़के पे भरोसा कर पा रही है। दोनों एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। एंड अगर ऐसी सिचुएशन है, तुम नहीं फाइंड कर पा रहे, कंपेटेबिलिटी नहीं आ रही, तो इट डजंट मैटर, शादी मत करो, ठीक है। तुम अकेले एक बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकते हो। जैसे इस बंदे ने लास्ट में लिखा है, मैं अपने करियर पे फोकस करूंगा, मैं ट्रैवल करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, जो करना है वो करूंगा लाइफ में, जो खरीदना है वो खरीदूंगा। तो सही है ना, ऐसे करो। फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे भी चले जाना, ठीक है, लिबरेशन के लिए कैसे मुक्ति पानी है मुझे अपने ईगो से, ये सारी चीजों पे भी फोकस करना। तो ऐसा नहीं है कि तुम अकेले नहीं रह सकते यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर नहीं मिल रही तो ठीक है, पर तुम्हारा मेन फोकस यही नहीं होना चाहिए कि सारी लड़कियां ऐसा कर रही है तो इसीलिए मैं अब पैसे कमाने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा मेन पैसे कमाने का मतलब ये थोड़ी था कि सिर्फ लड़की ही मुझे अट्रैक्ट करनी है। तुम्हें खुद भी तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए ना, एक अच्छी ऐशो आराम वाली जिंदगी, या एटलीस्ट थोड़े बहुत पैसे हो कि जिसके साथ तुम्हारा सर्वाइवल इजी हो जाए थोड़ा। इसीलिए भी तुम पैसे कमाते हो, सिर्फ लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए ही थोड़ी पैसे कमा रहे हो, थोड़ी करियर पे ध्यान दे रहे हो। तो वो तो बाई प्रोडक्ट है। एंड अगर बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रही है तुम्हें तो ठीक है, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने ट्रैवलिंग पे ध्यान दो, जो खरीदना है वो खरीदो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर तुम्हें ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, जो तुम्हारी वैल्यू करता है, जिसके प्रति तुम्हें प्यार वाली फीलिंग है, अगर तुम्हें ऐसा नहीं मिल रहा तो दिस डजंट मैटर, कैरी ऑन विथ योर लाइफ अलोन। अकेले आए थे अकेले जाना है, ठीक है। जीवन का एक ही सत्य है एंड वो है मृत्यु। तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। अगर अल्टीमेट डेस्टिनी हमारी डेथ ही है तो फिर कोई तुम्हारे साथ इस छोटे से पल के लिए हो या ना हो, इतना ज्यादा तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी अकेली अपनी कंपनी में रहना भी आना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी कुछ लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी वैल्यू करते हैं, उनके साथ रहो। अगर तुम्हें ऐसा नहीं मिल रहा अपना पार्टनर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, ओके। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।